हाँ, वो कहावत है ना कि जिस गली जाना है उस गली के बारे में सारी खबर रखनी पड़ेगी। आप एग्जैक्टली। रैंडमली सुबह सुबह पहुंच के यू कैन नॉट टेक द कॉल कि नहीं अब चार रास्ते मुझे सामने मिल रहे हैं, रैंडमली किसी में घुस जाता हूँ, तो फिर तो एग्जाम नहीं क्रैक होने वाला। एंड आई थिंक वो विजन की क्लैरिटी बहुत मैटर करती है। Very good evening, everyone. My name is Shubham Singh Hania, and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2, Commerce and Management. And today I have brought forth in front of you a very, very special guest. She is Miss Samriddhi, and she has already qualified her NET JRF in Commerce with a 99.99 percentile. Post that, she started her preparations for PhD, and she has qualified the prestigious interview at IIT Delhi. And currently, she's a PhD scholar there, working as a research scholar in the area of HROB. सो टुडे आई एम गोइंग टू इंटरैक्ट विथ हर और बहुत सारी इंसाइटफुल चीजें कि इन्होंने किस तरीके से तैयारी करी, व्हाट हैज बीन हर स्ट्रगल्स, व्हाट हैज बीन हर चैलेंजेस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समृद्धि, thank you for finding out time out of your busy schedule, and congratulations on cracking such prestigious institute and joining for your PhD program. So I welcome you on the channel, Samriddhi. Thank you so much, sir. Thank you for inviting. Samriddhi, first question, very, very cliche based question. How does it feel? Because I remember you coming back to this channel as a net aspirant when you're after cracking your net. So how does it feel to come back as a PhD scholar today? Kuch feelings mein, are there any differences in the feelings, or the feelings are same today? So it feels great, like as I'm climbing the ladder of the career, and then such interviews actually make the journey more enjoyable and more enriching. So I feel blessed when I'm able to share my experiences and people are able to benefit from it. So Hmm. it's a great opportunity and feeling more or less same here, but net it was like expected. IIT Delhi was not that expected. So Hmm. that is why the level of gratitude towards the God has increased a lot. Fantastic. I think, and this is a wonderful achievement because recently, yesterday, IIT Delhi's ranking has come up. And जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉमर्स और मैनेजमेंट वालों को ऐसा लगता है कि आईआईटी जो है, पहले लगता था, अब तो काफी अवेयरनेस हो गई कि वो सिर्फ बीटेक कराता है या इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, बट माय गॉड, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सेक्शन आईआईटी दिल्ली इज इन टॉप 4. So that Yes. clearly tells us the kind of research environment IIT is fostering. So kudos to you on cracking that wonderful place and being a research scholar. And I'm very hopeful कि बहुत जल्दी जल्दी आपकी publications हमें LinkedIn पे सुनने मिलते रहेंगे. Thank you so much, sir. Yes, Samriddhi, now I want you to brief a little about your educational qualification, what all you have done, from where you have done, and take us forward. So I have done my schooling from Bal Bharati Public School, Mhm. Pitampura, and then I did BCom honors from SRCC, and then I went to pursue MCom from Department of Commerce, Delhi School of Economics, and then I cracked UGC NET JRF with 99.99 percentile during my third semester, and then I applied for PhD at IIT then. Fantastic. समृद्धि, एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि बहुत सारे लोग जिनका नेट क्वालिफाई हो जाता है, उसमें से बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं दैट दे वांट टू गेट इनटू टीचिंग फर्स्ट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, Yes. or let's say they want to become a lecturer as of now. So what made you took another part and you have started applying for PhD, and when did you actually start with your preparation? These are my two questions. So initially, sir, I talked to many people because everyone has some or the other experience to share. Some have good experience, some have bad experience, and सबके अपने अपने point of views होते हैं. Some people would say that go for full-time PhD. Some would say that आप PhD करो and side by side teaching करो because it adds to your work ex. So one needs to weigh the pros and cons क्योंकि फायदे नुकसान दोनों ही areas में रहेंगे. So that is why, and also like IIT Delhi is a huge brand. So I was made to think about long-term benefits. After 5 years, when I start earning, then I will be at a better position. So keeping that in mind, I took the decision कि मुझे PhD पहले properly करनी है, and then I'll go for teaching area. And as far as PhD preparation is concerned, so it's a slow and gradual process. So in grad, when we were studying HR, so I developed an inclination towards that subject. एंड मुझे ये था कि सीनियर्स एंड टीचर्स ने बताया था कि पीएचडी में हैंड होल्डिंग नहीं होती. सो यू शुड राइट द रिसर्च पेपर अभी, क्योंकि अभी आप कुछ ट्राई करोगे एंड कहीं आप अटकोगे तो आपके टीचर्स आपको हेल्प कर देंगे. सो इनिशियली माई इंस्टिंक्ट सेड कि मुझे एचआर में पेपर लिखना है.
तो वहीं से थोड़ा इंक्लिनेशन स्टार्ट हो गया. प्लस आई हैड एन इंटरनल जिसके अंदर मुझे प्रेजेंटेशन देनी थी वर्क लाइफ बैलेंस पे. So that topic also felt interesting. वो मुझे नहीं पता था कि after 2 years I will be, pursuing PhD in this topic. But I would say कि open minded रहना चाहिए. Because आपको नहीं पता कि कौन सा assignment, कौन सी चीज कब आपको strike कर जाए. Right. So that gradual process, and so I took major में मैंने finance लिया था, minor में HR, and then I was bit confused कि finance में PhD करनी है या फिर HR में, because many people say that finance में scope ज्यादा है. But my suggestion to all the viewers is कि किसी भी एक इंसान का जो ओपिनियन होता है उसको पहले 2-3 लोगों से वैलिडेट करो and then only accept it. Because afterwards when I talk to teachers, they said that ऐसा कुछ नहीं है. Every field has different scope and different challenges. So you should do what inspires you. And also I talked to a PhD scholar, so he had asked his friend to suggest a topic to him because he was finding it difficult to find a PhD topic for himself. And like he is completing his PhD from TISS. Tata Institute of Social Sciences. So he told me, like अभी तो उनका submission का stage है, so he told me कि कभी ऐसे मत करना, किसी दोस्त की मत सुनना topically, especially because it's you who has to deal with that topic for the 5 years. So it's like when you talk to people, you get to know several experiences and they help you a lot. I think समृद्धि बहुत ब्यूटीफुली आपने सारी चीजें सम अप कर दी है. मैं इसमें सिर्फ अपने 2 सेंट्स ये ऐड करना चाहूंगा कि हमें आदत ऐसे पड़ी हुई है, मतलब हमारी गलती नहीं है इसमें. मुझे ऐसा लगता है एज अ स्टूडेंट हमें ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में और स्कूल से, इनफैक्ट स्कूल्स में हमें नोट्स मिल जाते थे, ग्रेजुएशन में हमें फोटोकॉपी नोट्स लास्ट में मिल जाते थे, हम किसी टॉपर के नोट्स ले लेते थे या जीरोक्स शॉप से फोटोकॉपी करा लेते थे. अब मास्टर्स में भी यही होने लग गया है कि दो हम प्रेजेंटेशंस देते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, बट एट द लास्ट हम वो 10 ईयर्स पे आ जाते हैं कि 10 ईयर्स मिल जाए उसको तैयार करके एग्जाम दे दें, या फिर जीरोक्स शॉप वाले को ज्यादा पता होता है कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सी रीडिंग पढ़नी है. दैट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट. तो हमें कभी वो आदत ही नहीं पड़ी कि हम खुद को ड्राइव करें. और पीएचडी इज जस्ट अबाउट ड्राइविंग योर ओन सेल्फ. यू आर सिटिंग ऑन अ ड्राइविंग सीट एंड यू आर द वन ड्राइविंग द टॉपिक. जो मेंटोर है वो तो बस इतना बता देगा कि भाई लेफ्ट लेना है या राइट लेना है. वो भी बहुत अच्छे मेंटर्स हुए तो ये भी मैं बताना चाहूंगा, बिकॉज सिंस यू हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, आई ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस स्पीकिंग टू अ लॉट ऑफ पीएचडी कैंडिडेट्स. तो कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि हमें ड्राइविंग सीट पे बैठा के छोड़ दिया गया है और ब्रेक भी नहीं है उसमें. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर, बट द बेस्ट पार्ट इज यू हैव टू लिसन टू योरसेल्फ. आप जो आपको टॉपिक पसंद आता है, विच यू फील यू आर पैशनेट अबाउट, यू वांट टू मेक दैट कंट्रीब्यूशन, वही टॉपिक चूज करना चाहिए. अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू मूव फॉरवर्ड. आप स्टार्ट तो कर लोगे, पीएचडी में एनरोल भी कर लोगे, एडमिशन भी मिल जाएगा, बट उसके बाद प्रॉब्लम होगी. 6 महीने जब निकल जाएंगे तो उस टॉपिक को पढ़ने का मन नहीं करेगा. सो आई थिंक राइटली टोल्ड बाय समृद्धि ऑल्सो. Samriddhi, now that brings me to the next question, that what were the various sources that you started exploring? Because एक topic idea आपको आया होगा, of course, workplace आपने बताया, work-life balance, then how did you move forward? Okay, so initially when I talked to my teachers, तो उन्होंने कहा कि ABDC journals की list जो होती है उसको explore करो, see the top journals in HR field and then start reading those issues. कि उसमें कौन से issues, like there are several concepts. Employer branding है, compensation management है, many things are there. Start reading newspaper articles as well, what people are talking about. So all this thing, reading gives you ideas. And through that you can take it forward. So first, initially you need to take a decision between the field you want to go to, like HR, finance, marketing, then narrow it down to the concept or the topic that you want to pick up, and then redefine it based on what previous research is there. So you will have to do literature review, and then only you can narrow it down. For instance, I am studying the relationship between two variables, and also I will be studying the moderating variables. So there's a lot of possibility कि उन दो variables के बीच में relationship नहीं पढ़ रखा, अगर पढ़ भी रखा है तो वो moderating variables को नहीं consider कर रखा. So that is the research gap. So for that you need to sit down and study. I think समृद्धि ने काफी अच्छे से बताया, बट जो नए व्यूअर्स हैं वो शायद वर्ड मॉडरेटिंग सुन के फंस जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं उनके लिए. कोई भी एक वेरिएबल जो बीच में एक्ट करता है बिटवीन टू वेरिएबल्स इज टर्म्ड एज, इन अ वेरी सिंपल टर्म, इज टर्म्ड एज अ मॉडरेटिंग वेरिएबल. तो कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज को लेके. बट राइटफुली आई थिंक समृद्धि ने बहुत अच्छा एग्जांपल भी दे दिया टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि जितने अच्छे से, अब देखिए इस स्टेज पे नाउ शी इज जस्ट एंटरिंग इनटू अ पीएचडी, बट स्टिल शी इज अवेयर अबाउट द मॉडरेटिंग वेरिएबल एंड ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट. ये हमें क्लियरली बताता है दैट शी हैज डन हर होमवर्क प्रॉपर्ली. इन्होंने लिटरेचर रिव्यू कर लिया है एंड शी ऑलरेडी हैड दैट आइडिया कि ठीक है मॉडरेटिंग वेरिएबल मिसिंग है.
So that I think should be the approach of a PhD candidate अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं या आप अच्छे से रिसर्च करना चाहते हैं. It's not about कि किसी ने टॉपिक दे दिया और आपने पिकअप कर लिया. So I think that approach is Samriddhi going to take you to places. Samriddhi, now that brings me to the next question. How did you actually prepare for your research proposal? क्या क्या एलिमेंट्स आपने ध्यान रखे, किस तरीके से आपने तैयारी शुरू करी, उसके बारे में हमें कुछ बताइए. Sir, so I got guidance from my teachers and I interacted with seniors at IIT Delhi, जिन्होंने just एक साल पहले ही admission लिया था. So no one shares the proposal as it is, but they do give you an idea कि ये aspects cover करने हैं. Also we saw आपकी YouTube video, उसमें भी था कि कैसे बनाना है, and there was a sample proposal as well. So we started with it and then we were 2-3 friends, तो हमने लिख के फिर एक दूसरे से editing करवा ली या और लोग जो हमारी हेल्प कर सकते हैं. सो वी शेयर्ड विद देम कि ये प्रपोजल है. वी डिस्कस्ड कि क्या क्या इसमें फ्लॉज लग रहे हैं, हाउ टू गो अबाउट इट. सो दैट इज हाउ फर्स्ट आप एक रफ ड्राफ्ट बनाओ एंड देन यू टॉक टू पीपल एंड देन कीप ऑन मॉडिफाइंग इट एंड फाइन ट्यूनिंग इट. राइट. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक सैंपल ड्राफ्ट, एक सैंपल हो जिसमें आपको एटलीस्ट ये आइडिया लग जाए कि क्या क्या कंपोनेंट्स आपको इंक्लूड करने हैं. बिकॉज अभी जब भी मेरे स्टूडेंट से इंटरेक्शन होती है तो सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि रिसर्च प्रपोजल और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बीच में डिफरेंस क्या है या फिर कितना एट लेंथ जाना है. तो आई थिंक रफ ड्राफ्ट एक अगर सैंपल मिल जाएगा उसके बाद यू कैन बिल्ड अपॉन दैट एंड कीप इंप्रूविंग दैट. So I think that is a very good approach. And also they also specify like IIT Delhi में 1300 words का है, department में 2500 words है, and they give you broad topics कि आपको research, आप क्या research questions आपको बताने हैं, literature review डालना है, how you will be contributing to the field, and then conclusion. So they also specify the areas which you need to pick up on. So give those headings and then start writing उसके अंदर अपना जो भी input है. ठीक है. Samriddhi, there is one question that is popping in my mind right now, and that is कि how have you chosen an institute? जैसे फॉर एग्जांपल कई बार जब मेरी स्टूडेंट से बात होती है तो दे आर लाइक सर IIT भी है, IIM भी है, and everybody is going to have their own reason. It's a very personalized kind of a question. So how do you make that choice या decision या what parameters have you taken into consideration? Because we have Delhi University, you pass out from a Delhi University. So instead of waiting, and because almost timeline same होने वाली है इंटरव्यू की, राइट नाउ द इंटरव्यूज आर गोइंग टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई लास्ट वीक और प्रॉब्ली इन अगस्त, तो ऑलमोस्ट टाइमलाइन तो सेम होने वाली है. सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दैट इंटरव्यू और प्रोबेबली गेटिंग इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर कंटिन्यूइंग विद योर PhD और योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फर्दर, यू चोज IIT दिल्ली और प्रोबेबली यू चोज IITs. सो क्या पैरामीटर्स है जिसको आपने ध्यान में रखा? बिकॉज आई रिमेंबर हैविंग अ वेरी लॉन्ग कन्वर्सेशन विद यू, सो आई थॉट ऑफ गिविंग दैट इनसाइट टू द स्टूडेंट्स एज वेल. So I'm grateful that I have good people in my life. So be it seniors, be it mentors, be it teachers, juniors, so everyone has lot of knowledge and lot of advice to share. So like I got to know the experience of people, like TTU का किसी ने experience share किया, and we had a session media cell जो conduct करवाता है BTC. So we called someone from IIM Ahmedabad. So everyone had different opinion, and जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स का ब्रांड वैल्यू अच्छा होगा, कुछ के मेंटर्स अच्छे होंगे, कुछ का कोर्स वर्क अच्छा होगा, एंड सम ऑफर यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू टीच साइमल्टेनियसली एंड अदर्स डोंट. सो इनिशियली आई वांटेड टू टीच साइमल्टेनियसली. तभी आपसे जब बात हुई थी कि डिपार्टमेंट से करना बेटर रहेगा ताकि साइमल्टेनियसली टीच कर सको. ऐसे FMS also gives this option to teach simultaneously, but currently FMS is not taking the interviews अभी, एडमिशंस नहीं ले रहे वो, एंड डिपार्टमेंट का अभी थोड़ा टाइम है फॉर द प्रोसेस टू and for the selection to take place. So that is why in the meantime it was my first institute IIT Delhi जो मैंने अप्लाई किया था. एंड मोस्टली जिनसे भी मैंने बात की थी अपने SR के टीचर से भी, उन्होंने कहा था पहले आप एडमिशन मतलब हाथ में आ जाए ऑफर, फिर बताना, देन वी विल चूज. Right. So like IIT Delhi हो गया and everyone was like happy कि हाँ ले लो बहुत अच्छा ब्रांड है, इतना easily नहीं होता. So yeah, you have done a good job, go for it. So that is why I chose this. I think बहुत ही अच्छा स्मार्ट आइडिया. और फाइनेंस में भी हम कहते हैं a bird in hand is better than two in the bush. तो जो हाथ में मिल रहा है पहले उसमें एडमिशन ले लो, और जैसे जैसे मूव ऑन होंगे you can take your decisions accordingly. Samriddhi, that brings me to the next question, that how has been your interview experience? क्योंकि कई जगह इंटरव्यू बहुत लंबा चलता है, कई जगह इंटरव्यू बहुत छोटा चलता है, ठीक है. एंड व्हाट आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस और द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट दे हैव एक्चुअली आस्क्ड? कुछ अगर एग्जांपल्स आपको याद हो अगर.
एक्चुअली जो इंटरव्यू जो मेरे फाइनेंस फ्रेंड्स का था, उनका थोड़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस डिफरेंट था. उनका नॉलेज बेस ज्यादा था कि जो जनरल फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो उनसे ज्यादा पूछे गए थे. फॉर HR आई हैड आल्सो टॉक टू माय सीनियर्स रिगार्डिंग द इंटरव्यू प्रोसेस आल्सो. सो इट वाज लाइक कि पहले दे आस्क्ड अबाउट माई सेल्फ एंड देन दे टॉक्ड अबाउट द प्रपोजल. एंड उसके बाद जैसे आपने अभी मॉडरेटिंग वेरिएबल का बताया व्यूअर्स को कि मॉडरेटिंग क्या होता है, तो उन्होंने पूछा था कि मॉडरेटिंग और मीडिएटिंग में डिफरेंस क्या होता है. डिफरेंस क्या है, ऑफ कोर्स. हाँ, एंड लाइक आई टोल्ड कि A और B में रिलेशन आई एम गोइंग टू स्टडी. सो दे आस्क्ड हाउ आर यू गोइंग टू मेजर A एंड हाउ आर यू गोइंग टू मेजर B, एंड देन दे टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इट. एंड कि मतलब आप खुद से क्वेश्चनर डेवलप करोगे या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्वेश्चनर उठाओगे. देन दे आस्क्ड मी अबाउट स्टैटिस्टिक्स, एनोवा, मॉडरेटिंग के टाइप्स क्या होते हैं. So everything happens like first initially you tell about yourself, and usme like I would like to tell this inside. Some people start telling about their hobbies. So you should keep yourself in the shoes of the interviewer first. आप उनकी पोजीशन में रख के देखो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. PhD करने के लिए they want a self-driven student. They want a person who is curious to learn more things and is able to figure out the things on his or her own. So whatever they want, आपको वो चीजें हाईलाइट करनी चाहिए rather than कि मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, मुझे चेस खेलना पसंद है. So I think जब लिमिटेड टाइम होता है, you need to be smart enough, and जितना पहले से प्लान करके जाओगे एंड लाइक थोड़ा एक आइडिया मिल जाता है लोगों से बात करके कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है. So I must say कि नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक बहुत ही अच्छे से आपने चीजों को एक्सप्लेन किया समृद्धि की. Now, if you are aware about those things, जैसे जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स को उन टेक्निकलिटीज के बारे में पता ही नहीं होता. कुछ इंटरव्यूज आर गोइंग टू बी वेरी जेनरिक इन नेचर, जैसे आपने बताया कि फाइनेंस का नॉलेज बेस्ड हो सकता है, और कुछ इंटरव्यूज टेक्निकल हो सकते हैं. बट द बेसिक आइडिया इज यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ, सो दैट एनीथिंग दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू शुड बी एबल टू आंसर. सो उसके लिए आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोगों से बात करें और नेटवर्क करके एटलीस्ट थोड़ा ब्रॉड आइडिया ले लें. एट द एंड ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स, बिकॉज कई बार क्या होता है कि HR में भी अगर 2 पैनल बने, एक पैनल ने टेक्निकल सवाल पूछ लिया और दूसरे पैनल ने जनरल HR के सवाल पूछ लिए. सो देयर इज नो रूल ऑफ लॉ कि या तो टेक्निकली पूछेंगे या तो सिर्फ HR पूछेंगे. आई थिंक जितनी होलिस्टिक प्रिपरेशन रहेगी उतनी ज्यादा आपके चांसेस होंगे, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी सिलेक्शन की. Yes, sir. And also you need to be confident, because अगर owners of a company are not confident themselves, then you won't invest. Right, so why would they invest in a scholar who himself is not confident in the topic and जिनको खुद ही clarity नहीं है कि वो करने क्या वाले हैं. तो that is what I am saying कि even अगर वो placement interview हो या वो PhD interview हो, first think what the other person wants. First analyze what they are expecting from you, and then accordingly you prepare yourself. Right. Makes absolutely sense. Samriddhi, now that brings me to the next question, that what should be the focus area. मतलब जब स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, स्पेशली वो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो साथ में नेट की भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो स्पेसिफिकली थोड़ी सी उनकी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए व्हाट आर योर सजेशंस, क्या उनका फोकस एरिया होना चाहिए जिसपे वो ध्यान रखें पहले और उसको साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करते रहे अलोंगसाइड देयर मास्टर्स, और लेट्स से इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट. Sir, I think like in second year when we are asked to take major and minor, तब अगर मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंड यही रहना चाहिए कि जिस एरिया में आपको PhD करने का इंटरेस्ट है आप वही लो, क्योंकि आप जब उसके बारे में रीड करते हो यू गेट टू नो मेनी टॉपिक्स. So it's not that afterwards someone will stop you from entering some other field. It's not like that, but still it helps, because when you are studying and you are in touch with those teachers who are in that area, who are specializing in that area. So I clearly remember that in HRD internals we had to read many research papers and उनकी summary बना के देनी होती थी. So that helps. So I would say कि firstly major minor में थोड़ा concentrate करते हुए take those fields which you think you are going to do PhD in as major and minor, and then जैसे हम नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, then also we get to know कि अच्छा मार्केटिंग एरिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि फाइनेंस है कि नहीं. So we need to have an open mindset. ऐसे ये सोचना कि PhD के इंटरव्यू से 1 महीने पहले ही तैयारी शुरू करेंगे, so that is wrong approach. Because like I told you, we called some IIM Ahmedabad scholars, so that was 1 year ago. That was in April 2021. अगर मैं उस समय इस माइंडसेट से रहती कि मैं तो सेशन ऐसे ही क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम में हूँ इसलिए अटेंड कर रही हूँ, मैंने सुनना नहीं है, तो दैट वुड हैव नॉट हेल्प. सो दैट इज व्हाई आई वुड से कि हैव एन ओपन माइंडसेट एंड कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट करते रहो कि आपका इंटरेस्ट एरिया किस साइड में है, एंड जैसे आर्टिकल्स एंड ऑल रिसर्च पेपर्स, सो यू कैन गो थ्रू देम.
हाँ, वो कहावत है ना कि जिस गली जाना है उस गली के बारे में सारी खबर रखनी पड़ेगी। आप एग्जैक्टली। रैंडमली सुबह सुबह पहुंच के यू कैन नॉट टेक द कॉल कि नहीं अब 4 रास्ते मुझे सामने मिल रहे हैं, रैंडमली किसी में घुस जाता हूँ, तो फिर तो एग्जाम नहीं क्रैक होने वाला। एंड आई थिंक वो विजन की क्लैरिटी बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा कि सर 1 साल पहले हमने एक सेशन कराया था, तो 1 साल पहले इसका मतलब क्या है कि एट द बैक ऑफ योर माइंड 1 ईयर बिफोर ओनली यू हैड दैट क्लैरिटी कि नहीं, मुझे अगर रिसर्च में जाना है तो मैं थोड़ा सीरियस हो जाऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मास्टर्स लेवल में भी आके, नाउ एवरीबॉडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर नेट इज एटलीस्ट इन अ मास्टर्स लेवल, मास्टर्स या लेवल में भी आके अगर आप सीरियस नहीं है या आपका विजन क्लियर नहीं है कि मुझे लाइफ में अब क्या करना है, देन आई थिंक इट्स टू लेट टू टेक एनी डिसीजन। तो आई थिंक मास्टर्स लेवल तक थोड़ी सी क्लैरिटी आनी शुरू हो जानी चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली मेहनत भी करते रहना चाहिए उसी डायरेक्शन के अंदर। डेफिनेटली। So Samriddhi, now that brings you to the last question for our session. I'll not take much time of yours. The last question says, आप क्या advice देना चाहेंगे? Because you had wonderful experience in terms of your academic background also from SRCC and then from Delhi School of Economics. Again, you are in a very prestigious institute. So what is going to be one advice of yours to any future aspirant who is going to prepare for UGC NET or let's say for PhD? So one advice is get in touch with more people, listen to their experience and gain insights from their experience because that helps a lot. आई थिंक बहुत ही ब्रीफ में और बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब दिया कि वो कहते नहीं है कि हमारे पास पूरी लाइफ में इतना टाइम नहीं है कि हम खुद ही गड्ढे में गिरें और फिर सीखें। हमें दूसरों की गलतियों से भी चीजों को सीखना पड़ेगा, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प अस टेक बेटर डिसीजंस। सो आई थिंक थैंक यू सो मच समृद्धि। आई थिंक इट हैज बीन लवली इंटरेक्टिंग विद यू, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत इंसाइटफुल बातें मुझे लगता है आपने ऑलरेडी व्यूअर्स को बता दी हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर वो इनमें से एक दो चीजें भी ग्रहण कर लेते हैं या फिर अगर एसिमिलेट कर लेते हैं, आई एम श्योर दे आर गोइंग टू डू वंडर्स इन देयर लाइफ। So thank you very much, Samriddhi, for being with us, and it has been a wonderful journey for you, and I wish you all the best for your future also. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you for having me. Thank you, Samriddhi. Thank you.